Hello, everyone. Very warm welcome to all of you on the platform of Super Gets by Top Rankers. आज का जो सेशन है, दिस इज MHCAT का क्वांट के इन्वॉल्विंग सम DI का डिस्कशन. So please do join, and once you join, do not forget to let us know by your comments about your joining as well. So data interpretation, MHCET for MBA का session, and we are going to do some very interesting set which has been prevalent in the last few years. So the source of the content is from last few years, and we are going to practice that on what lines questions are expected. तो सबसे पहला सेट है ये. The presented line graph illustrate the profit percentage of the company's P and Q over the span of 5 years ranging from 18 to 22. डेटा प्रोवाइडेड और एक एक्चुअल डिफाइन भी किया गया है कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज. आप इंट्यूशन से मत जाना, गो बाय द कि व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द प्रॉफिट परसेंटेज ओवर हियर, एंड दिस इज हाउ इट इज. लाइन ग्राफ, line graph involving two different companies across different years. Line graph involving two different companies across 5 different years. इनकम के बारे में कुछ बता रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज का एक फॉर्मूला ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है. सो प्लीज डू फाइंड आउट कि व्हाट शुड बी द वे टू क्रैक दिस क्वेश्चन एज अर्ली एज पॉसिबल. Find out the way to crack this problem as early as possible. Okay. Profit percentage of two companies P and Q across 5 years. 18, 19, 20, 21 के across profit percentages दे रखे हैं. Income of company P in 2020 was given. Income of company P in 2020 is given. What is the expenditure debt year? What is the expenditure debt year? Income बता के expenditure पूछ रहे हैं in the year 2020. तो सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टली 2020 पर चले जाओ. P. P is in this color. This is P. So what is the value of the profit percentage? 15%. What is the value of profit percentage? 15%. I will not go like it. मैं इस तरह नहीं जाऊंगा. You just see the way I'm going, है ना? You just see the way I'm going. Profit percentage 15 by 15% है. 15% is 15 by 100. 15 by 100 means 3 over 20. So profit of 3. Okay. अच्छा, profit percentage का denominator is expenditure over the expenditure of 20. This is how we will interpret this data. जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तब भी आपको ये बताया जाता है कि आप इस डेटा को ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि 20 के एक्सपेंडिचर पर, जो कि वहां पर सीपी होती है, 20 के एक्सपेंडिचर पर 3 का प्रॉफिट. सो द सेलिंग प्राइस देयर इज एक्टिंग एज अ इनकम हेयर. सो व्हाट वुड बी द इनकम? सर, अकॉर्डिंग टू रेशियो इनकम वुड बी 20 plus 3 23. दिस इज मेकिंग दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग वेरी इजी, क्योंकि अब मुझे प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो पता है. अब मुझे प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो पता है, 3 20 23. ओके. अगर किसी एक की भी एग्जैक्ट वैल्यू पता होगी, इट वुड बी सफिशिएंट टू गिव यू द आंसर. इनकम की एग्जैक्ट वैल्यू पता है, 23 की एग्जैक्ट वैल्यू इज गिवन एज 368. फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. 23 1 जा 23, फिर बचता है 138. 138 कितने बार जा सकता है? 6 टाइम्स, 16 टाइम्स. So this is a multiplication of 16 times.
What was the expenditure that year? So expenditure according to ratio is 20. 20 into 16, 320 crores. This is the way to solve it. Come on, tell me. Is this very clear? हमने किस तरह इंटरप्रेट किया प्रॉफिट परसेंटेज को? The way we have interpreted the profit percentage, रेशियो में इंटरप्रेट किया, like it was also डिडक्टेबल फ्रॉम हेयर एज वेल, है ना? आप इसे 15 डिवाइड बाय 100 इधर लाते तो भी ये वही बात बनती कि 3/20 इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो एक स्टेप और लगता तो आप एक्सपेंडिचर को 20 का रेशियो लेते एंड दिस इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 3, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर प्रॉफिट है, तो फिर पक्का इनकम 23 रही होगी, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग 3 इन द न्यूमरेटर। ओके, so this kind of interpretation can also work, but this is the best interpretation what we have done. Okay, let's move on. Income of company P increased by, oh, that's a lengthy question maybe. That's a lengthy and a tricky problem. Income of company Q increased by 10% each from 2018 to 2022. Its profit in 2022 is what percentage of its profit in 2019? Amazing problem, guys. Amazing problems. कंपनी क्यू की बात हो रही है जो कि डार्क में है। ओके, कंपनी क्यू की बात हो रही है विच इज इन द डार्क। हर साल इनकम इज राइजिंग बाय 10%, देन इट्स प्रॉफिट इन 2022 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट इन 2019? ओके, वी विल यूज ऑफ द रेशियोज अगेन कि 17% का प्रॉफिट मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ 100, इनकम ऑफ 117। ओके, initial income in the, let's suppose income in the 2018 was, expenditure was 100, income is 117, तो income is rising by 10% every year, तो income तो 117 में 10% का राइज 1.1 1.1 1.1 1.1 देख लेते हैं कितने बार होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। 10% का राइज है ना भाई हर साल। दिस इज योर फाइनल इनकम। ओके, its profit in 2022 is what percentage of the profit in 2019? Is what percentage of the profit in 2019? 2019 का प्रॉफिट देखना एक बार। 2019 में 15% का प्रॉफिट हुआ था। 2019 में 15% का प्रॉफिट हुआ था, 2022 में 11% का प्रॉफिट है। बट इनकम वी आर मूविंग इन दिस मैनर, इनकम इस मैनर में आगे जा रही है। सो ओके, मैं 2019 की इनकम भी लिख सकता हूं। इनकम ऑफ 2019 वुड बी, इनकम ऑफ 2019 वुड बी 117 इंटू 1.1 इंटू 1.1, क्योंकि इनकम इज राइजिंग 10% एवरी ईयर। तो व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द प्रॉफिट इन द ईयर 2019? प्रॉफिट इन द ईयर 2019 इज गोइंग टू बी 15% होता है, तो 15% होने का मतलब कि इट इज 3/20, या फिर आप कहोगे कि 3 का प्रॉफिट ओवर द एक्सपेंडिचर ऑफ 20, सो 3 का प्रॉफिट ओवर द इनकम ऑफ 23, ओवर द इनकम ऑफ 23। और इनकम की हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है, इनकम हमें इतनी पता है कि इनकम इज 117 इंटू 1, सो व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज 3/23 ऑफ 117 इंटू 1.1। ये मैंने प्रॉफिट इन 2019 का डेटा निकाल लिया। नाउ आई विल कैलकुलेट प्रॉफिट इन, नाउ आई विल कैलकुलेट प्रॉफिट इन 2022 विद द सेम फिलॉसफी। इनकम पता है 2022 की,
प्रॉफिट हुआ है 11% का। 11% का प्रॉफिट मींस 11 का प्रॉफिट ओवर द एक्सपेंडिचर ऑफ 100, बट 11 का प्रॉफिट ओवर द इनकम ऑफ 111। सो प्रॉफिट इज 11 का प्रॉफिट ओवर द इनकम ऑफ 111, और 2022 की इनकम, आई एम अवेयर ऑफ द एक्चुअल डेटा। 4 बार 19 और 20 का कंपैरिजन करना है, जस्ट डिवाइड, यूज द कैलकुलेटर्स। जस्ट डिवाइड एंड यूज द कैलकुलेटर्स। यू वांट टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, सो मल्टीप्लाइड बाय 100। न्यूमरेटर में रखना है 2022 को, और डिनोमिनेटर में रखना है, 2019 को। तो 117 तो कैंसिल ही हो जाएगा। 11/111 ऑफ 117 इंटू 1.4 4 बार आ रहा है, ठीक है। एंड दिस इज डिवाइड बाय 3/23 ऑफ 117 इंटू 1.1। ये गया, ये गया। नाउ बिट ऑफ कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व। परसेंटेज निकालना है तो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100। परसेंटेज निकालना है तो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100, यू विल गेट द आंसर। कैलकुलेटर यूज कर लेना, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। लेट मी टेल यू फ्रॉम माई सेल्फ। इट इज 4 बार बचा हुआ है अभी। 4 बार बचा हुआ है विथ 3 डेसिमल्स, तो 121 इंटू 121, और 1 2 3 डेसिमल्स बचे हुए हैं, समथिंग लाइक इट। नीचे 111 है, और इधर 3 है, और 23 है। सो परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100 होना है, तो ये भी 12.1 बन जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स चला जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग टाइम्स चला जाएगा। 97 या 100 के आसपास के चांसेस हैं। यू कैन क्लियरली कैलकुलेट इट। इट वाज अ डिसेंट इनफ प्रॉब्लम, इट वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, कम ऑन। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू। Ratio of income of P and Q is 2:3. What is the approximate ratio of their expenses in that particular year? बहुत ध्यान से कर रहे हैं कि इनकम के रेशियोज बता रखे हैं, और एक्सपेंडिचर के रेशियोज बताने हैं, और प्रॉफिट परसेंटेजेस के डेटा आर अवेलेबल टू अस। प्रॉफिट परसेंटेजेस के डेटा आर अवेलेबल टू अस। पी एंड क्यू इन द ईयर 2021। पी और क्यू की बात की गई है। P is slightly here. P is 13 and Q is 14. P is 13, Q is 14. Yeah. So this 13 will say a profit of 13 over the expenditure of 100 and over the income of 113, because income is profit plus expenditure. The ratio है ना, ये मैंने P के लिए लिख दिया. Now I'm writing the same ratio for Q. Q के लिए प्रॉफिट इज 14 over the expenditure of 100, so income of 114. So income of 114, what is the approximate ratio of their expenditure that particular year? कुछ बराबर कराया गया होगा, इनकम का रेशियो बताया गया है. So let's suppose this is in the variable x and this is in the variable y. So 113x over 114y is given in the ratio 2:3. एक्सपेंसेस का रेशो बताना है, मतलब 100x अपॉन 100y का बताना है, तो बेसिकली बस x रेशो y निकालना ही सफिशिएंट है. सो आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग x रेशो y. इट इज 222 डिवाइड बाय 339. तो यार अप्रोक्सीमेट वर्ड जो यूज किया ना, क्वेश्चन को खत्म ही कर दिया. बिकॉज ये दोनों तो वन टाइम ही है ना, तो 2/3 के आसपास ही आना चाहिए. 2/5 नहीं आएगा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा. 5/3 नहीं आएगा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा. ओके, 2/3.
2/3, क्योंकि दिस विल जस्ट कैंसल आउट वन टाइम अप्रोक्सीमेटली। तो क्या ये 2/3 है? 10 और 20, सर ये तो 1/2 लग रहा है, 2/3 इज फार अवे। दिस कैन बी द आंसर। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 से ये 2:3 जा रहा है, तो इसके अप्रोक्सीमेटली ये बन जाएगा। बिकॉज 17/25 जो है वो कहीं ना कहीं कितने परसेंट आता है? वो कहीं ना कहीं आ जाता है अपना 68%। और इसे भी जब आप परसेंटेज में निकालोगे तो ये भी 67 68% के आसपास जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट वाज नॉट। I think it is similar type of problem now. We can crack it now pretty easily. It is looking like a simpler problem as compared to the previous problem. 2022 में आ गए। Expenses of P and Q are equal. Expenses of P and Q are equal. What is the ratio of their income? मतलब अब तो डिनोमिनेटर 100x और 100y इक्वल कर दिए, तो फिर तो डायरेक्टली इनकम के रेशियोज पता चल जाएंगे। बिकॉज P जो है वो ये है, तो P के लिए प्रॉफिट होता है 18 का, एक्सपेंडिचर 100 का, और इनकम 118 की फॉर P। एंड फॉर Q, profit is 11, expenditure is 100, income is 111। इसको x x के टर्म में ले लो, इसको y y के टर्म में ले लो, है ना। फिर बोल रहा है कि एक्सपेंसेस आर इक्वल, तो ये दोनों चीजें बराबर हैं, मतलब x इज इक्वल टू y है। एक्सपेंसेस आर इक्वल मतलब x इज इक्वल टू y है। तो फिर तो पता नहीं क्या है इनकम का रेशो। तो 118x अपॉन 111y, जहां पर x इज इक्वल टू y है, 118/111 इज द करेक्ट आंसर। 118/111 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगेन वेरी 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 इंटरेस्टिंग सेट। आई होप यू शुड रिवाइज इट वंस अगेन। और जिस तरह हमने सॉल्व किया है वैसे ही आप सॉल्व करना है एक बार और, विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, एंड डू इट वंस अगेन फ्रॉम योर साइड, है। Do it once again from your side. It is really a good set. Okay. This is a easier version of that. This is a easier version of it. वही डेटा बट अब वार ग्राफ के फॉर्म में। सेम डेटा आई हैव टेकन इट इन द लीनियर ग्राफ फॉर्म, एंड आई एम टेकिंग द सेम डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ नाउ। फिर से इन्होंने उसी तरह डिफाइन किया है। दिस इज योर प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन एज वेल, ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज द प्रॉफिट परसेंटेज। एक पर्टिकुलर ईयर का ही डेटा बता रखा है, एंड द कंपनीज आर MNPQR, and this is the value what you need to take: 10 20 30 40 50 60। Let's go to the problems। पहला, companies M and N together has a profit percentage and loss of how much? तो मतलब दोनों का मिला के हमको एक्सपेंडिचर और इनकम देखना पड़ेगा। दोनों का मिला के एक्सपेंडिचर और इनकम देखेंगे, देन वी वुड बी एबल टू कमेंट कि दोनों में किसी को प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो एम और एन के इनकम और एक्सपेंडिचर्स देखने पड़ेंगे। रेड वन इज द इनकम एंड ब्लू वन इज द एक्सपेंडिचर। सो 35 here and 50 here, total income 85। what is the expenditure? 45 plus 40, 85। income is equal to expenditure, there is no profit no loss। there was no profit no loss। ओ माई, ये तो भाई बहुत ही सिटर है। तो आई शुड हैव टेकन दिस फर्स्ट, है ना। चलो, आई वाज कीपिंग द प्रायोरिटी ऑफ लाइन देन दैट। what is the approximate percentage of profit loss of all the five companies taken together?
What is the approximate percentage of profit loss of all the five companies taken together? तो फिर पांचों की इनकम और पांचों के एक्सपेंडिचर देखने पड़ेंगे. तो इनकम ऑफ ऑल इज 35, 50, 40, 40 एंड 50. 8 5 13, 18, 215. What is expenditure? 45, 40, 85, 45, 45, 40, 45, 30, and 45. 90, 40, 130, 160, 205. So there has been some profit है ना, there has been some profit. कितना हुआ है? 10 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ 10. और प्रॉफिट को आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में डिफरेंस इज कमिंग, एंड इन द डिनोमिनेटर एक्सपेंडिचर इज कमिंग. So profit over of 10 over the expenditure of 205 into 100. So this is becoming 1000 by 205. अगर ये 5 हो जाता बट थोड़ा कम पड़ जाएगा. So approximate तो 5 ही पहुंच जाएगा if the word approximate is used. Otherwise exact it would be 4 point something. 4 की वैल्यू से ज्यादा होगा, 5 के नजदीक होगा, तो we will select 5 as the answer. We will select 5 as the answer, not 4, because 4 से मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, 5 से कम होगा. Which company earned the maximum profit percentage in the year 2011? ये तो लॉस है. This is already a loss. Why? Expenditure ज्यादा, इनकम कम. Out of competition. Out of competition. एक्सपेंडिचर ज्यादा, इनकम कम, प्रॉफिट है. लॉस. प्रॉफिट है. प्रॉफिट है. इट इज लुकिंग वेरी मार्जिनल प्रॉफिट. यहां पर बहुत कम प्रॉफिट लग रहा है. इट्स अ प्रॉफिट ऑफ 5 यूनिट over 45 unit. 1 by 9. 1 by 9 is 11.11%. It's a profit of 10 units over expenditure of 30 units. 1 by 3. It's a huge 33.33% profit. It's a profit of 10 unit over the base of 40. 1 by 4. It's a 25% profit. Q is the highest among them. Q is the highest among them. सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका है? Q का. Again a sitter problem. Sitter problem. Okay, let's move on. Somewhat looking more interesting than the previous few questions. Let's check out whether it would be a difficult task for you to crack this nut or not, or it is going to be as easy as our past 3 4 questions. For the company R, expenditure has increased by 20% in the year 2011 from the 2010, and the company has earned profit of 10%. What was the company income in 2010? Expenditure has increased by 20% in the year. अच्छा, आर कंपनी के लिए, आर कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर जो है वो 20% राइज किया है. अच्छा, दिस ग्राफ इज ऑफ 2011. ये ग्राफ 2011 का है. यहां से आपको बैक ट्रेसिंग करके एक्सपेंडिचर ऑफ 2010 लिखना पड़ेगा. ओके, बैक ट्रेसिंग करके एक्सपेंडिचर ऑफ 2010. दिस इज द वैल्यू आफ्टर द इंक्रीमेंट ऑफ 20%. ये 20% के इंक्रीमेंट के बाद की वैल्यू है.
एक्सपेंडिचर इज ग्रीन, सो 45 जो वैल्यू है, इट इज 1.25 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। तो लास्ट ईयर रहा होगा एक्सपेंडिचर 45 बाय 1.2। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। मतलब 2010 में ये 20% एक्सपेंडिचर में राइज हुआ है, 1.2 टाइम्स की वैल्यू 45 है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू रही होगी 45 अपॉन 1.2। ठीक है, एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर आ गया हमारा 2010 का। द कंपनी हैज अर्नड प्रॉफिट ऑफ 10% इन द 2010। तो इनकम कितनी थी? कंपनी ने 10% के प्रॉफिट कमाए थे, तो अगर एक्सपेंडिचर 100 था तो इनकम वाज 110, एज सिंपल एज इट। अगर एक्सपेंडिचर 100 था तो इनकम वाज 110, एक्सपेंडिचर 1000 था तो इनकम वाज 1100। तो अगर एक्सपेंडिचर ये है तो इनकम वुड हैव बीन 10% प्रॉफिट कमाने की वजह से 45 अपॉन 1.2 इंटू 1.1। ये 1.1 क्या सिग्निफाई कर रहा है? प्रॉफिट ऑफ 10%। प्रॉफिट ऑफ 10% इट इज सिग्निफाइंग, गया गया, सो इट इज 495 डिवाइड बाय 12। सो 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 48 के बाद बच जाता है 15, 12 1 जा 12, 41.25 would have been the correct answer. 41.25 is the correct answer. Got it, everyone? Do watch out. Clear to all? Again, this was a good enough. हम बैक प्रेसिंग कर रहे हैं कि हमें इनकम ऑफ 2011 पता है, हम एक्सपेंडिचर ऑफ 2011 पता है, हम उससे एक्सपेंडिचर ऑफ 2010 लिख रहे हैं, और प्रॉफिट परसेंटेज की हेल्प से एक्सपेंडिचर से डायरेक्ट इनकम लिख रहे हैं। बिकॉज एक्सपेंडिचर आ गया 4.45 अपॉन 1.2, अब उससे डायरेक्ट इनकम लिखनी है, डायरेक्ट इनकम लिखनी है मतलब 1.1 टाइम्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 10% का प्रॉफिट है। तो इनकम जो होगी वो 1.1 टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर होगी, एज सिंपल एज इट। एक्सपेंडिचर वुड बी 1.1 टाइम्स ऑफ इनकम, वुड बी 1.1 टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर। इस तरह से आप इनोवेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। Oh, lot of question of this type. Come on. Now you can improvise as well. Along with me, now you can improvise as well. It is looking like an important topic for you because lot of such questions is coming. कंपनी क्यू का जो 2011 का इनकम था was 10% more than income in like what do you say in 2010। आपको 11 का पता है, 10 का निकालना है। 11 का पता है, 10 का निकालना है। तो 11 का जो इनकम है वो 10% ज्यादा है 2010 से। तो आप कहोगे सर 11 में कंपनी क्यू जो है, कंपनी क्यू में 11 का जो इनकम है वो है 40। अब ये 2010 के कंपैरिजन में 10% ज्यादा था, तो इसका मतलब ये 1.1 टाइम्स ऑफ एक्स रहा होगा, तो 2010 का इनकम रहा होगा भाई 40 बाय 1.1। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट अगेन, क्योंकि वो 10% ज्यादा है। 10% ज्यादा मतलब 1.1 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू है, और 1.1 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू की वैल्यू 40 दे रखी है, तो हम प्रीवियस वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, इनकम। अब 20% का प्रॉफिट हुआ था, 20% का प्रॉफिट हुआ था, एक्सपेंडिचर बताना है 2010 का। अच्छा, प्रॉफिट मतलब इनकम इज हाउ मच टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो आप कहोगे सर 20% का मतलब ये होता है कि 2010 का जो इनकम है, 2010 का जो इनकम है, इट इज 1.2 टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ 2010। यही है 20% का मतलब। इफ यू डोंट गो ओवर दैट बेसिक फॉर्मूला कि 20% का मतलब इनकम इज 1.2 टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर, एज सिंपल एज इट। तो ये हम लकीली निकाल चुके हैं 40 अपॉन 1.1। तो ये डिवाइड बाय 1.2 इज द एक्सपेंडिचर ऑफ, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस। 0 0
4,000 by 11 into 12. So it is 120, 132. Just simplify, you will get the answer. 4,000 by 132 would be the answer. On simplification, it would not be that much difficult. It is coming as 30.30. मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया फटाफट. 30.30% would be the answer. अप्रोक्सीमेशन से भी जा रहा है बिकॉज 132 की टेबल में 132 की टेबल में 3 टाइम्स पढ़ने पर वी हैव रीच्ड 396 और 396 के बाद बस हार्डली 4 बचा हुआ है और 4 बचा हुआ है 40 बनाओगे 40 इज नॉट सफिशिएंट एक और जीरो लोगे तब 400 बनेगा तो एक और जीरो लोगे तो 30.0 आ गया फिर उसके बाद 3 टाइम्स जाएगा 30.03 would be the 30.3 would be the answer because it's a smaller number comparatively. Average profit percentage of Q and R. Q का प्रॉफिट परसेंटेज और R का प्रॉफिट परसेंटेज का एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ Q and R. So profit percentage of what is the profit percentage of Q? 10 का ओवर 30 10 का प्रॉफिट ओवर 30 1 by 3 33.33%. And what is the profit of R? सर 5 का प्रॉफिट ओवर 45 1 by 9 is 11.11%. Look at both the data. कितने बढ़िया डेटा सेट है. What is their average? 22.22. मतलब 11.11 और 33.33 का एवरेज क्या होगा. क्या हमको सम और डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत भी है क्या. नहीं सर. 11.11 और 33.33 का विजिबल है कि एवरेज इज 22.22. Here none of the option is approximate word नहीं है तो you should choose none of these. If approximate word is not there, you should choose none of these. और अगर approximate word होता तो we would have chosen what? 22 वाला. Clear? We would have chosen 22 वाला. अब approximate word नहीं है तो we would choose the none of these. Okay. चलो all of the income, yeah, that was exact. Yeah. So these are the two sheds, guys, which was very, very important. है ना? You please do watch out them and try to form some conclusions, try to apply these logics while solving the actual problems in the CAT as well. Uh, I hope you might have thoroughly enjoyed the session. Uh, so this is something which I found out ki was there. So you should be definitely practicing it. These are like our connecting links: Telegram channel, Instagram channel, YouTube channel, TR management community, set get set go. So thank you very much, guys. See you in the upcoming sessions. Till then, take care of yourself. Have a great time. Keep it up. Keep it up. Take care of yourself. And keep preparing well. Keep preparing well. If you want some homework, I can give you some homework as well. It is a easy set involving सम कैलकुलेशन. तो जैसा कि देख लो, ये ताजमहल के विजिटर हैं और उनका मेल फीमेल का रेशो. रेड फोर्ट के विजिटर मेल फीमेल का रेशो. इंडिया गेट के विजिटर मेल फीमेल का रेशो. आई एम क्विकली डूइंग विद दिस यू, है ना, सो दैट टू गिव यू लिटिल बिट मोर इनपुट. रेशियो ऑफ मेल हु विजिटेड. अब फटाफट से मेरे सॉल्यूशन देखते जाना. रेशियो ऑफ मेल हु विजिटेड द रेड फोर्ट इन 2012 एंड 2013. रेड फोर्ट 2012 में और 2013 में. रेड फोर्ट. अच्छा, मेल की बात हो रही है तो मेल एंड फीमेल आर इन द रेशियो 20:21. इसको आपको इंटरप्रिटेशन कैसे करना है कि मेल इज 20/41 ऑफ द टोटल वैल्यू. यू हैव टू इंटरप्रेट लाइक इट. मेल अगर 20 है, फीमेल 21 है, तो मेल इज 20/41 ऑफ द टोटल वैल्यू प्लस
2013 की बात हो रही है, 5:4, 5:4 मेल लेना है हमको। तो मेल के लिए 5 विल कम इन द न्यूमरेटर एंड 5 + 4 9 विल कम इन द डिनोमिनेटर, 7398। ये दोनों साल के मेल विजिटर्स हो गए भाई। अब फीमेल विजिटर्स मतलब उल्ट दूसरे वाले रेशियोज लेने हैं। 21/41 ऑफ 6560, आई थिंक रेड फोर्ट ही इन्वॉल्व है, इंडिया गेट इन्वॉल्व है, इंडिया गेट इज इन्वॉल्व। तो इंडिया गेट 2012 और इंडिया गेट के लिए फीमेल आर 2/3 ऑफ 3294 एंड हेयर फीमेल आर 7/16 of 5392. Bit of calculation is there. Time would have been there. टाइम के साथ क्वेश्चन किया जा सकता है। एक बार ये फटाफट से ट्राई करो एंड मैच द आंसर। फटाफट से ट्राई करके मैच द आंसर। 41 की टेबल में आता होगा ये, 41 1 जा 41, फिर उसके बाद बच जाएगा करीब करीब 24 246, 246 is going 6 times, so this is 16 into 2 3200 plus 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, फिर 19 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो 800 इंटू 5 4000, 4110, 410, so this is becoming 7210। तो अगर आपको पेशेंस नहीं आ रहा है तो 720 का बस फैक्टर चेक कर लो यहाँ पर कौन सा होगा, इफ यू डोंट वांट टू डू इट कंप्लीटली। अदरवाइज 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 24, 1098 इंटू 2 नीचे आ रहा है, 1098 इंटू 2 नीचे आ रहा है, प्लस 16 3 जा 48, 48 के बाद 59, 16 3 जा 48, 112, 112 is 7 times, 337 into 7। Upon simplification you will get the answer, upon simplification you will get the answer। What is the key learning कि वो लिखे कैसे जाते हैं। जैसे यहाँ पर मेल और फीमेल का रेशियो 20:21 था, तो जब आपको मेल लिखने थे तो 20/41 ऑफ द वैल्यू, टोटल वैल्यू। यहां पर भी मेल लिखने थे तो 5/9 ऑफ द टोटल वैल्यू, और जब इंडिया गेट के फीमेल लिखने थे तो 2/3 ऑफ द टोटल वैल्यू। what I've done, 2/3 of the total value, and here were 7/16 of the total value। this is the way to write it, okay। बाकी कैलकुलेशन पार्ट है, आप खुद ही कर लेना, हो जाएगा। ओनली द कॉन्सेप्ट वाज इंपॉर्टेंट। फीमेल इंडिया गेट इन 2015, देखना फटाफट से एक बार में। फीमेल 2015 पर आए, इंडिया गेट पर आए और फीमेल पर आए, सो इट इज 5/8 ऑफ 6080, ऐसे 5/8 ऑफ 6080। मेल रेड फोर्ट 2014, रेड फोर्ट 2014 मेल 8/17 ऑफ 5440। अपॉन सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट कि व्हाट इज दैट परसेंटेज, है ना, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा। 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 56 के बाद बच जाता है 48, 8 6 जा 48, 760 into 5, 35 और 3 38, सो ऊपर आ गया। कीप अ पेशेंस एंड डू दिस एज वेल। 17 3 जा 51, 34, 17 2 जा 34, इट इज 320 into 8, 320 into 8 into 100 कर लो, so it is 38,000 divide by 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 256। बस सिंप्लीफाई मार लेना, वन टाइम 100 से बड़ा ही नंबर आ रहा है, सो लेट्स सी 140 भी आ सकता है और 125 भी आ सकता है। एक बार जल्दी से फटाफट चेक कर लो व्हाट इट इज कमिंग। इट इज 3800 डिवाइड बाय
256. Have they used approximately? Yeah. So into 10 करने पर we will get somewhat around 150%. वो हम ऐसे भी कर सकते थे कि इसका सर 100% 256, 2560, और फिर इसका आधा इज 128। तो कहीं ना कहीं सर हम जब ये ऐड करेंगे तभी 3800 के आसपास जा पाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली दिस वुड हैव बीन द आंसर। ठीक है, तो इस तरह ये वाले प्रॉब्लम्स भी आप क्रैक कर देना। आई होप यू विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम इन डूइंग देम। और मैं आपको इसके और सेशंस दिखा देता हूँ। जो मेन की पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया है। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। यू कैन जस्ट गिव द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड दिस इज ऑल्सो द होमवर्क फॉर यू। इसके भी आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना अंडर द टैग ऑफ आंसर फॉर थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। प्लीज डू टेक द स्क्रीनशॉट एंड गिव देयर आंसर्स, ठीक है? Because now all of them are of the same idea. We have already discussed the gist कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। तो सब फिर एक ही तरीके से होंगे, करते जाना है। इट वुड बी अ गुड एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। इट वुड बी अ गुड एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। So these 3 4 questions you should be doing it by yourself. So 2 3 different type of questions what we have tackled today. I hope you can find out some takeaways from these 2 3 questions and can further apply yourself and improve your applications in the DI. Uh, okay, so take care of yourself. Have a great time. See you in the upcoming session.